Hello everyone, welcome to Curious Learning. In the previous video, we have discussed a topic of Bohr model of hydrogen atom. Subtopic था वो remaining है. So now we will continue it. That subtopic is energy levels. Means हमने energy की एक value attain करी थी last derivation में, that is E will be equal to minus 13.6 upon n square electron volt. So this is the value of energy we have calculated in previous video. So now we will draw energy levels by using this equation. So ये तो energy levels की एक general equation थी. We put n is equal to 1. Then energy की value क्या आएगी? E1 will be minus 13.6 upon 1 का square 1. So it will be minus 13.6 electron volt. This is for n is equal to 1. And if we put n is equal to 2, then we get E2 will be, you can write here E subscript n. And then value will be minus 13.6 upon 2 का square 4 हो जाएगा. So its value will be minus 3.4 electron volt. Similarly, you can find more values for n is equal to 3, 4 and so on. These are the values. This is the value correspond to n is equal to 1. Energy will be minus 13.6 electron volt, and corresponding to n is equal to 2, this is the value of energy. And then for 3, 4 up to so on, we can put the values of n from 1 to infinity. So its end will be at infinity. It is the final value of n. When we put n is equal to infinity, then in this equation we know 1 upon infinity will be 0. So at that point of time जो energy की value आएगी, that will be 0 electron volt. और ये वो energy की value होती है n is equal to infinity पे when the electron is completely out of its orbit, out of the atom, and that is at rest. तो जब electron rest पे आ जाएगा, then उसकी energy की value at that point of time will be 0 electron volt when electron is out of that atom. So this is the highest value we can say correspond to n is equal to infinity. So जब हम energy level diagram को draw करेंगे, energy levels को draw करेंगे, then जो n is equal to 1 के corresponding है, this is the lowest state. तो lowest state है, तो it is called ground state. Yeah, exactly. So this is called ground state. I am writing here GS, ground state. अब ये ग्राउंड स्टेट है, तो बाकी की जो स्टेट्स हैं दे आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, जिन पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा सकते हैं हम. इफ वी हैव टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 लेवल टू n इज इक्वल टू 2 लेवल, मीन्स इस ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी. ये कैसे फाइंड होगा? दैट हाउ मच amount of energy is required to excite an electron from ground state to its first excited state, but in case of hydrogen atom. So you must remember कि ये सभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं, मॉडल पढ़ रहे हैं, this is for only hydrogen atom, not for other atoms. तो हाइड्रोजन एटम के केस में जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम उसे एक्साइट करवाएंगे, जंप करवाएंगे, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम how much energy is required? So वो किसके इक्वल आएगी? That will be equal to energy difference between these two states. Means इन दोनों states का energy difference अगर हमने फाइंड कर लिया, so then can find कि कितनी energy हमें चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में. तो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? That will be equal to EF minus EI. तो एनर्जी डिफरेंस EF विल बी, तो हमारी इनिशियल स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट है ना. ग्राउंड स्टेट से हमें एक्साइटेड स्टेट में जाना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मीन्स n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे. तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं दैट इज इनिशियल पोजीशन, पॉइंट पे हमें रीच करना है, दैट इज final position. So similarly, so this is the initial state and this is final state. So energy of final state will be minus 3.4
4 electron volt, minus energy of initial state will be minus 13.6 electron volt. Minus minus will be plus, so it will be minus 3.4 plus 13.6, and then after solving we get 10.2 electron volt. So this much amount of energy is required to jump an electron from ground state to its फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है. सिमिलरली अगर हमें फर्स्ट से थर्ड में जाना है तो हम उसके लिए फाइंड करेंगे. देखो अगर इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेट मीन्स ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करवाया, लेकिन अगर हमें यहाँ इस n=3 में शिफ्ट करवाना है इस एनर्जी लेवल में, तो उसके लिए क्या आएगी वैल्यू. तो यहाँ पे सिंपली हम जो फाइनल है EF वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट विल बी -1.51, एंड जो EI दैट इज इनिशियल एनर्जी है वो तो यही रहेगी, बिकॉज हमने इसी इलेक्ट्रॉन को n=3 में अगर जंप करवाएंगे तो फाइनल चेंज हो जाएगी, इनिशियल सेम रहेगी. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस फॉर दैट लेवल. बट इफ वी हैव टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=2 to n=3, तो उस केस में हमारी इनिशियल भी चेंज होगी, फाइनल भी चेंज होगी. इस एनर्जी लेवल में क्या हो रही है, एक्साइटेशन हो रही है, तो उस टाइम पे फाइनल एनर्जी क्या आएगी, -1.51 एंड इनिशियल विल बी -3.4. तो ये वैल्यूज वेरी करेंगी. ये डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी लेवल में से किस एनर्जी लेवल में जंप कर रहे हो. ठीक है, डिपेंड अपॉन इनिशियल एनर्जी लेवल एंड द फाइनल एनर्जी लेवल, दैट हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस वाले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक रीच करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट विल बी डिफरेंट, और नेक्स्ट के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी. यू कैन कैलकुलेट इट. ओके, फर्दर स्टेट्स के लिए आप कैलकुलेट कर लेना. तो एनर्जी लेवल्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्टली जो हमारी लोएस्ट स्टेट है वो सबसे नीचे आएगी, दैट इज ग्राउंड स्टेट. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट देयर विल बी फॉर n=2, देन 3 के लिए ड्रॉ करेंगे, 4th के लिए, एंड सो ऑन फॉर इन्फिनिटी इट विल बी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये जो वैल्यूज हैं दीज आर वैल्यूज ऑफ एनर्जी. Okay, these are values of n which we will put in this equation, and from this equation we can get these values of energies. So this is very simple, but you need to remember this formula because it is very very important. You must remember it, right? And now so this is the lowest state, it is called ground state. Then what do we call this state? It is a first excited state, and then n=3 it is second excited state. तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे तो n=2 है तो ये तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गई. नो, ये देखो n=1 के लिए ग्राउंड स्टेट है ना, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो वो ग्राउंड हो गई. बाकी सभी स्टेट्स जो होंगी 2 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक ये सभी एक्साइटेड स्टेट्स हैं. सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट. अगर n=3 है दैट इज नॉट थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. एंड देन फॉर n=4 it is third excited state. So this is the point which you have to keep in mind. Okay, don't confuse and corresponding to n=2 it will be second excited state. No, I'm repeating again that n=2 it is first excited state, and similarly up to so on you can name them, that it will be second, third and so on. Energy of ground state will be -13.6 electron volt. तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए सपोज पहले हमने एक्साइटेशन करी थी ना n=1 से n=2 एनर्जी लेवल में, तो अब हम एक्साइटेशन करेंगे n=1 से मीन्स ग्राउंड स्टेट से हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट. दिस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू n=infinity, दिस इज हायर एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो सबसे जो हायर एक्साइटेड स्टेट है मीन्स उसमें हमने क्या करवा दी, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवा दी. मीन्स इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे n=1 से n=infinity पे, सीधा इन्फिनिटी पे जंप करा दिया उसे. तो उस टाइम पे हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, E∞ फाइनल माइनस इनिशियल
ये सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, E infinity minus E1, because corresponding to n is equal to 1 there will be energy will be E1. तो E infinity की वैल्यू तो 0 है, माइनस हेयर एंड माइनस माइनस प्लस 13.6, तो ये वैल्यू आएगी plus 13.6 electron volt. This is the amount of energy, plus 13.6 is the amount of energy which is required to raise the electron from n is equal to 1 level to n is equal to infinity level. मीन्स इस लेवल ग्राउंड स्टेट से हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस 13.6. इसकी एनर्जी थी माइनस 13.6, इसके कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस 13.6. किसके लिए, वही लो एट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, आउट ऑफ द अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाता है और रेस्ट पे आ जाता है. सो इफ वी वांट टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, मीन्स इस स्टेट में n इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाली स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट से फ्री हो जाता है और रेस्ट पे आ जाता है. दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू विल बी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अब हम क्या कर रहे हैं, उसके ऑर्बिट से एटम से फ्री कर रहे हैं, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा जब हम उसकी एक्साइटेशन 1 से इन्फिनिटी लेवल पे लेकर जाएंगे. तो एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन. कहां से फ्री करेंगे, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट. किसकी ग्राउंड स्टेट से, ऑफ हाइड्रोजन एटम. ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, plus 13.6 electron volt. So this is the definition of ionization energy of hydrogen atom. We know ionization energy क्या होती है, it is energy required to eject the electron, मीन्स इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, उसे नॉकआउट करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई. तो हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री ही कर रहे हैं ना. सो इट इज द मिनिमम अमाउंट, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, and that value is plus 13.6, and this is called ionization energy of hydrogen atom.